بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ المائدہ انشاءاللہ ہم آیت نمبر 52 to 56 دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى ما أسروا في أنفسهم نادمين. سوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم کسی دائرے میں یا کسی چکر میں، کسی آفت کے چکر میں نہ آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ممکن ہے کہ لے آئے اللہ اپنا حکم یا اپنا فیصلہ اپنے پاس سے، تو وہ رہ جائیں گے اس پر جو انہوں نے چھپایا تھا اپنے دل میں پچھتاتے ہوئے. آیت نمبر 53. وَيَقُولُونَ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. اور سوچیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان والے تھے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھا کر اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے تھے، بڑی مضبوط قسمیں وہ کھاتے تھے کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. ضائع ہو گئے ان کے اعمال اور وہ ہو جائیں گے بہت جلد نقصان اٹھانے والوں میں سے. آیت نمبر 54. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جو پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے، تو ضرور لائے گا اللہ ان کی جگہ پر ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے. نرم ہوں گے ایمان والوں پر اور سخت ہوں گے کافروں پر. وہ جد و جہد کریں گے اللہ کی راہ میں اور نہیں انہیں کوئی خوف ہوگا ملامت کرنے والوں کی ملامت کا. یہ فضل ہے اللہ کا، وہ دیتا ہے اپنا فضل جسے وہ چاہے، اور اللہ بڑی وسعت والا علم والا ہے. آیت نمبر 55. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ اور در حقیقت تمہارا دوست، تمہارا ساتھی تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز، عبادات، اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ اللہ کے سامنے جھکتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 56، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور جو دوست بناتا ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، تو بے شک یہی گروہ ہے، یہی جماعت ہے اللہ کی، یعنی کہ اللہ کی جماعت میں سے، اور یہی لوگ غالب آنے والے ہیں۔ انشاءاللہ آیت نمبر 52 دیکھتے ہیں، سورۃ المائدہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوستی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر دوسروں سے جو دوستی کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو کیوں ان کی دوستی پسند آتی ہے نا؟ سوچتے ہیں کہ کبھی ہم پر جو ہے، جیسے کہ آیت میں بتایا جا رہا ہے، ہم پر کبھی کچھ برا وقت آئے گا تو یہ ہمارے کام آئیں گے، ہے نا۔ کبھی کبھی دیکھو کہ نان مسلم لوگ جو ہوتے ہیں، اگر وہ کسی بڑی پوسٹ پر ہے کچھ، تو یہ سوچ کر دوستی کرتے کہ ارے چلو ہمارا کبھی کچھ ایسا بنا بگڑا تو یہ ہمارے کام آئیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دوستی تو پہلے منع کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ دوستی ان دا سینس کی ان میں اتنا زیادہ انوالو مت ہو جاؤ کہ تمہیں تمہارا دین جو ہے برا لگنے لگے۔ فتح الذین فی قلوبہم، اب یہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے۔ اب کس کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، وہ سورۃ البقرہ میں ہم نے دیکھ لیا کہ وہ منافق کی کیٹیگری ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو غیر مسلموں سے دوستی کرتے ہیں، اور یہاں پر جو دیکھیں کہ جہالت انسان کے اندر کب آتی ہے، جب وہ اپنا دین چھوڑ کر دوسروں کے دین کو فالو کرتا ہے، دوسروں کے دین کو پسند کرتا ہے۔ یہ جہالت کی بہت بڑی وجہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق کا مرض ہے، یعنی منافق لوگ، یسارعون فیہم یقولون نخشا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں، یا ان کی ساری جو دوڑ دھوپ ہوتی ہے جلدی کرتے ہیں، اور وہ سب کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت کا دور نہ آ جائے۔ دیکھیے منافقوں کا کیا حال تھا کہ اگر مسلمانوں کی طرف سے انہیں کوئی فائدہ نظر آتا تو وہ مسلمانوں کی طرف چلے جاتے، اگر انہیں نان مسلمس کفار کی طرف سے کوئی فائدہ نظر آتا تو وہ کفار کی طرف چلے جاتے تھے۔ مفاد کا بندہ ہوتا تھا، دین کا نقصان ہو رہا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ نان مسلم سے کیوں جو ہے وہ دوستی کرتے تھے، اس لیے کرتے تھے کہ چلو ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، برا وقت آئے گا تو ہم کو یہ کام آئیں گے۔ اس وقت برا وقت مطلب کہ ان کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ اسلام کو جو اسلام غالب نہیں آئے گا، نعوذ باللہ، اور یہ نعوذ باللہ یہ مسلمان ٹکنے والے نہیں ہیں، تو ہم اب اسلام کو غالب نہیں ہوا، اسلام یا غلبہ نہیں ملا، مسلمان کو نقصان ہوا تو ہم بھی نقصان میں آ جائیں گے، تو ایسی کوئی مصیبت ہم پر جو ہے وہ نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی سوچ کا جواب کیا دے رہے، فَغْزَوَاهُ، پھر بہت ممکن ہے کہ اللہ وہ لے آئے فتح، یا وہ حکم لے آئے اپنے پاس سے، یعنی کہ تم اپنے دل میں یہ سوچ رہے ہو کہ یہ جو ہے آج یہ ایمان والے یہ مسلمان تھوڑے ہیں، ان کی تو گنتی کے چند لوگ ہیں، یہ کیا غالب آئیں گے، آج تو مشرکوں کا دبدبہ ہے، کافروں کا دبدبہ، یہ فتح مکہ کے پہلے کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دو چیزوں میں سے اگر ایک چیز ہو جائے، نمبر 1 یا تو میں فتح لے کر آ جاؤں یا میں کوئی حکم اپنے پاس لے کر آ جاؤں، تو ایسا نہ ہو کہ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر وہ سب ہو جائیں گے اس پر جو چھپایا ہے انہوں نے اپنے دل میں، کیا ہو جائیں گے اس پر، نادمین، شرمندہ ہو جائیں گے۔ یعنی ایسا نہ ہو، تمہیں خوف نہیں ہے کہ تم اپنے دل میں ایمان والوں کے بارے میں ایسی باتیں سوچ رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ فتح مکہ کر دے اور یہ سکسیس عطا کرے ایمان والوں کو، اور تمہاری سوچ پر جو ہے وہ تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔
और फिर क्या होगा, जब ये पोल पट्टी इनकी और ये जो सारी इनकी हकीकत है खुल जाएगी तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं व यक़ूलुल लज़ीना आमनू, और फिर कहेंगे वो लोग जो ईमान लाए। अब ध्यान से सुनिए इस आयत को। अब जब इन लोगों का ये रूप, इन लोगों का ये चेहरा, किसका, मुनाफिकों का, अल्लाह सुब्हानहू ताला इनकी हकीकत खोल देंगे तो उस वक्त जो ईमान वाले थे यानी सहाबा वगैरह वो कहेंगे हाउलाई लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की पक्की पक्की कस्में खाते थे, इनकी कस्में तो बड़ी पक्की होती थी। यानी मुनाफिकों की तरफ इशारा करके ईमान वाले कहेंगे ये वो लोग हैं जो अल्लाह की इतनी पक्की पक्की कस्में खाते थे, अल्लाह की कसम हम तो बहुत ईमान वाले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम तो दीन के खैर ख्वाह हैं, अल्लाह की कसम खा खा के ऐसी बातें करते थे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं इन्नहुम लमाअकुम, और ये सब कहते थे क्या, हम तो तुम्हारे साथ हैं। आ रही बात समझिए। आपको कोई अपना बोलते हैं जैसे कि सामने आपके बहुत जाहिर करे कि अरे मैं तुम्हारा बहुत भला चाहती हूँ, तुम्हें क्या पता मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, और पीठ पीछे आपके जो है वो बोलते ना खंजर भोंकने वाला काम करे। ऐसे लोगों की हकीकत जब खुलती तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं वो शर्मिंदा हो जाते हैं अपने आप पर। और जब ऐसे लोगों की हकीकत खुलती है जैसे कि मुनाफिकों की खुल गई तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जब ईमान वालों पर ये बात खुलेगी तो ईमान वाले कहेंगे इनको तो हम अपना साथी समझते थे, ये तो कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं। इनका जो दोगलापना था उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हबितत अमालुहुम फअस्बहू खासिरीन, वेस्ट हो गए उनके सारे अमाल और वो सब कैसे हो गए, फिर नुकसान उठाने वालों में से हो गए, खसारा पाने वालों में से हो गए। और आपको पता है ये ऐसा खसारा है कि कभी इसकी भरपाई नहीं होगी। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ईमान वालों को नुकसान पहुंचाया, उन्हें धोखा देने की कोशिश की। अलग बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके हर धोखे से हिफाजत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दूसरे ईमान वालों की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह सही रखते हैं, एक मिनट। तो इंशाल्लाह हम जो है वो आयत नंबर 54 देखते हैं। और इस आयत को सुनने से पहले आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और रिलैक्स होकर एकदम अल्लाह सुब्हानहू तआला जो यहाँ पर कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। बहुत सख्त आयत है ये, बहुत ही ज्यादा, और इतना क्लियरली अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है हमें कुछ बातें बता रहे हैं। उसी के साथ साथ इंशाल्लाह हम ये भी देखेंगे आज कि अल्लाह का ग्रुप कौन सा होता है। कुछ लोग जब वो दीन पर आते हैं तो लोग उन्हें छोड़ देते हैं, रिश्तेदार छोड़ देते हैं, और तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तसल्ली दे रहे हैं आयतों में कि कोई बात नहीं, जब मेरे ग्रुप में यानी जिसको हिज़्बुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का ग्रुप, जब अल्लाह के ग्रुप में आपको शामिल होना है तो करने के कुछ काम यहाँ पर हैं। और इंशाल्लाह हमें पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरीके से अपने ग्रुप में अपने बंदे को शामिल कर लेते हैं। ओके, देखते हैं इंशाल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मय यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, बहुत सख्त बात है, बहुत ही। अब या अय्युहल्लज़ीना आमनू पुकार आई है मुसलमानों को, कह दीजिए आप लोग भी या अल्लाह ताला मैं सुन रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ईमान वाले हैं, मुसलमान है ना। कहीं पर भी देखिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू की पुकार आए तो फौरन आप अपने कान खड़े करके और फौरन जवाब दे, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ तेरी बात सुनने के लिए, क्या मुझसे तू क्या कहना चाहता है। तो इस तरीके से अल्लाह की बात का जवाब दिया करो, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि तुम में से जो भी तुम में से वो फिरना चाहता है, पलटना चाहता है अपने दीन से, गो है, शौक से फिर जाओ। छोड़ना है तुम्हें ये काम, तुम्हें ये क्लास पसंद नहीं आ रही, तुम्हें ये वक्त तुम्हें सोने के लिए पसंद आ रहा है, मैं नहीं बाबा कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये वक्त तो मेरा घर वालों को खाना सर्व करने का है, ये वक्त तो मेरे बच्चों को ट्यूशन का है, ये वक्त तो मेरे बच्चों का है, मैं नहीं कर सकती, आई कांट। देखिए आप जब दीन सीखेंगे नहीं तो दीन पर अमल कैसे करेंगे। और यहाँ पे असल में ड्यूटी की भी बात है। तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने दीन की ड्यूटी दी, अपने दीन का काम दिया, एंड यू डोंट लाइक, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है कि तुम वो करो, जाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चॉइस दी है, जाओ जिसको दीन पे से फिरना है फिर जाओ। बात क्या चली आ रही थी पीछे से,
कि मुसलमानों को छोड़कर, ईमान वालों को छोड़कर गैर मुस्लिमों से दोस्ती मत करो। ये ऐसे ही होता है। देखिए, दोस्ती किसी से है नहीं है वो तो अंदर की बातें है, किसी से जाहिर चीज अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे, जब हमें उनकी दोस्ती पसंद आने लगती है, उनके तौर तरीके अच्छे लगने लगते हैं, तो बंदा अपने दीन से चिढ़ने लगता है और उसे नापसंद करता है, और आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से वो अपने दीन से ही फिर जाता है। अल्लाह सुब्हान तआला ने ओपनली कहा, जाओ, जिसको फिरना है फिर जाओ। और ये भी सुन लो, फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमी युहिब्बूहुम व युहिब्बूनहु। तुम्हारे फिरने से अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि बहुत जल्द अल्लाह सुब्हान तआला ले आएंगे ऐसे लोगों को। ये कौन से लोग हैं? वो पसंद करेगा उन सबको, यानी उन ईमान वालों को अल्लाह सुब्हान तआला पसंद करेंगे, और वो सब पसंद करेंगे उसको, यानी अल्लाह सुब्हान तआला को। देखिए जरा, यानी ये बात अगर मैं ये कहूं कि आज मुसलमानों को जो ड्यूटी दी गई है उम्मत मोहम्मदिया को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आगे बढ़ाओ, आज मुसलमान दुनियादारी में इस कदर पड़ गया है, जाहिरदारी में इस कदर पड़ गया है, अपनी असल जिम्मेदारी को भूल कर बैठा है कि हमें अल्लाह का वो कलाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें मिला उसको दूसरों तक पहुंचाना है। और आपको पता है कि ये काम आज मुसलमानों ने छोड़ा, कुछ मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों ने छोड़ा, तो हुआ क्या? कन्वर्टेड लोगों को देखिए आप, उन्होंने इस काम को संभाल लिया है। कोई भी देखिए कन्वर्टेड जो होते हैं, जो गैर मजहब से इस्लाम कबूल करते हैं, आप उनकी एक्टिविटीज देखिए जरा, थोड़ी सी बात भी उन पर इतनी असर कर जाती है। और क्योंकि देखिए उन्होंने जब दीन इस्लाम कबूल किया तो बहुत कुछ उनको छोड़ कर आना पड़ा, बहुत कुछ जो है उन्हें सहना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा। मुसलमान तो मुसलमान घर में पैदा हुआ, बचपन से नमाज पढ़ रहा है, उसे क्या मुखालिफत से पड़ी है। लेकिन आज के टाइम पर भी बाप दादा के दीन पर ना चलते हुए जो इंसान सही किताब और सुन्नत पर चलता है, उसे भी इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे लोगों को बोल रहे हैं, तुम्हें आज ये काम पसंद है, तुम्हें अपना दीन पसंद नहीं आ रहा है, फिर जाओ, मैं ऐसे लोगों को लेकर आऊंगा कि वो मुझसे मोहब्बत करेंगे, मैं उनसे मोहब्बत करूंगा। अल्लाह अकबर। शौक से आप बोल दीजिए मुझे क्लास में अटेंड नहीं करना है, शौक से आप बोल दीजिए कि मुझे क्लास में नहीं आना है, मैं भी इस चीज को शौक से कह दूं कि भाई कल से मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। क्या बिगड़ा अल्लाह सुब्हान तआला का? अल्लाह सुब्हान तआला ने जब किसी को कोई भी एक जिम्मेदारी दी है, एक ओहदा दिया है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए बंदे को जो है अपना काम करते रहना चाहिए। थक कर हार कर बैठ जाएगा, मुझसे नहीं होगा, जाइए शौक से जाइए। अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा दरवाजा खुला है, चले जाइए आप, मैं किसी और को चूज कर लूंगा। नुकसान इससे हमारा ही होता है, ना कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला का कोई नुकसान नहीं होता है। देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला खुद कह रहे हैं वो मुझसे मोहब्बत करेंगे, वो मुझे पसंद करेंगे, मैं उन्हें पसंद करूंगा। दुआ करिए अल्लाह ये टूटी फूटी सी मेरी कोशिश को तू अपनी बारगाह में कबूल कर ले और मुझे ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा। यानी मांगा करो अल्लाह सुब्हान तआला से। करने के बाद अपने आप में एक रोब नहीं आना चाहिए, अपने आप में जो है वो एक अकड़ नहीं आनी चाहिए, खौफ आना चाहिए कि अल्लाह मैंने कर तो लिया इस दिन का काम, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये काबिल कबूल है या नहीं है। तो इस बात का हमें खौफ करना चाहिए। ठीक है, आगे और क्या क्या क्वालिटी से देखते हैं। और देखिए कि मैं अगर नहीं करूंगी दीन का काम तो कोई भी करेगा। अल्लाह सुब्हान तआला को अपने दीन का काम किसी न किसी से लेना है। ये अल्लाह का काम कहीं नहीं रुकता है। बंदा अगर पीछे हट गया तो उसका अपना नुकसान होता है, अपना खुद का नुकसान होता है उसमें। मजीद और ये लोग जिन्हें अल्लाह सुब्हान तआला पसंद करेंगे, इनकी क्या क्या क्वालिटीज होगी। अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह ये सिफत, ये क्वालिटीज मेरे अंदर भी पैदा कर दे। वो कैसे होंगे? अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, वो बहुत सॉफ्ट मिजाज होंगे, नर्म दिल होंगे ईमान वालों पर। इज़्ज़तिन अलल काफिरीन, और काफिरों पर बहुत सख्त होंगे। यानी अपने ईमान वाले भाइयों की दोस्ती पसंद करेंगे, ईमान वालों के साथ बहुत ही सॉफ्ट मिजाज होगा उनका अमाल के एतबार से, और काफिरों पर बहुत सख्त होंगे। ऐसा नहीं है कि काफिर ने जहाँ फेरा उधर फिर गए, जो करने को कहा वो कर लिया, नहीं।
अपने ईमान पे इस कदर ही ठुके हुए होंगे कि इन्हें ईमान वालों के साथ नरमी बरतनी करते हैं, और जो काफिर होते हैं उनके साथ ये बहुत सख्त होते हैं कि कोई काफिर इनको इनके ईमान से इससे फेर नहीं सकता है, इस तरीके से। और क्या क्या क्वालिटी से, युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, और वो जद्दोजहद करेंगे, मेहनत करने वाले होंगे अल्लाह के रास्ते में। उनके सारा जो है वो स्ट्रगल सिर्फ दुनिया के कामों के लिए नहीं होगा, बल्कि उनका स्ट्रगल, उनके एफर्ट सारी जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में होगी। देखिए जरा, आप अगर पता करना चाहती हैं कि वाकई अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे मोहब्बत करते हैं, जांचिए अपने आप को कि इनमें से मैं कौन सा काम कर रही हूँ। अगर इनमें से कोई अमल मेरे अमल में है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहीं ना कहीं मुझसे मोहब्बत करते हैं। और अगर आप चाहती हैं अल्लाह की मोहब्बत पाना, तो वो काम करिए कि जो अल्लाह की मोहब्बत दे आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला। और मज़ीद क्या है, वला युखाफूना लौमत लाइम, और नहीं वो डरते हैं मलामत से, मलामत करने वाले के मलामत से, ऐसा लेंगे इसको, ठीक है। मलामत करने वाले की मलामत से वो डरते नहीं है। अब ये क्या बात है, मलामत क्या है? देखिए, खौफ जो होता है ना, खौफ यानी कि ताने वगैरह और मुखालिफत, हाँ, और वो नहीं वो डरते हैं, ना वो मुखालिफत से डरते हैं और ना ही वो मलामत से डरते हैं। वो था डिफरेंट थिंग। आप इसको समझ जाए तो बहुत बड़ी चीज आप समझ जाएंगे। जब इंसान अल्लाह का महबूब हो जाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको ईमान के दायरे में दाखिल कर देते हैं, उसे फिर ईमान वाले ही अच्छे लगने लगते हैं। बाकी लोगों का वो साथ छोड़ देता है क्योंकि उसे पसंद नहीं आते वो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की राह में जो है वो स्ट्रगल करने लगता है, अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करने लगता है। तो होता क्या है, अब मुखालिफिन जो होते हैं, चाहे वो घर वाले हों, बाहर वाले हों, ससुराल वाले हों, मायके वाले हों, दोस्त हो, आपके यार हो, कोई भी हो, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी, वो क्या होता है, मलामत भी करते हैं और मुखालिफत भी करते हैं। अच्छा, मुखालिफत देखिए कि गैरों से होती है, दुश्मनों से होती है। अब मलामत अपनों से होती है, रिश्तेदारों से होती है। देखिए जरा, अल्लाह अकबर। देखिए, किसी की मुखालिफत का डर भी नहीं होता उन्हें कि कौन मेरे मुखालिफत में खड़ा है, कौन मेरे फेवर में खड़ा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो अल्लाह के रास्ते में निकल जाते हैं। और मलामत कैसे, मलामत करने वालों की मलामत से नहीं डरते, यानी कि किसी जैसे कि, और ये अपनों से होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अल्लाह के रास्ते में मेहनत कर रही हैं और आपको पता है बड़े खूबसूरत अंदाज में मलामत करते हैं रिश्तेदार और घर वाले। बोलेंगे, हाँ ये क्या हो गया, ये तुम क्या करने लगी हो, इतनी तो तुम मुल्लानी बन गई हो, बड़ी आपा बन गई हो, ये क्या तुमने हुलिया बना रखा है, और क्या हर वक्त तुम कुरान 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 की बातें करती हो, कितना पढ़ती हो, आँख के नीचे देखो डार्क सर्कल्स हो गए, बैठ बैठ के मोटी हो गई हो, ऐसी हो गई हो। जाहिर तो आपको लगेगा हाँ शी इज वेरी जो है वेल विशर फॉर मी, ये तो मेरा बहुत अच्छा चाहती है। और इस तरीके से वो आपको अपनी बातों में लेंगे और इस तरीके से आपको अल्लाह की किताब से दूर करने की कोशिश करेंगे। पता है आपको, अल्लाह अकबर। क्योंकि उन्हें पता है कि अल्लाह के रास्ते की जो नियामतें होती हैं, अल्लाह के रास्ते की जो रहमतें होती है, जो फजल होता है, जब उन्हें नहीं मिल रहा है ना, तो वो आपसे हसद करते हैं, इसी की मिल रहा है, ये काय को अल्लाह के रास्ते में जा रही है, हाँ मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। फिर वो हसद जलन में वो आपके फायदे की बात, आपको ऐसा लगेगा आपके फायदे की बात करें और आपको अल्लाह के रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। अब क्या होता है पता है, जो बिल्कुल ही ठुक गया अल्लाह के रास्ते में, वो बोलता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं चाहे मोटी हो रही हूँ, मेरे डार्क सर्कल्स बढ़ रहे हैं, मेरे को धूप में जाना पड़ता है क्लास में, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या हो गया, मैंने अपने 2 घंटे की नींद कुर्बान कर दी तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और ये मलामत अपनों की तरफ से आती है, और ये चीजें डेफिनेटली हर उस शख्स के साथ होती है जो बाप दादा का कल्चर छोड़ के, बाप दादा का दीन छोड़ के और सही किताब और सुन्नत की तरफ आता है। फिर इस तरीके के लान तान जो है वो लोगों से सुनने पड़ते हैं। लेकिन बंदा कैसा होता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मेरा रब राजी हो रहा है ना, बस मेरे लिए यही है, कि इस तरीके की बातें। और पता है आपको कि इसी तरीके से आप बिल्कुल न्यू मुस्लिम को रखिए ना,
देखिए कि लोग कितना लान तान करते हैं कि क्या है तुमने अपना कल्चर छोड़ के किसी और का कल्चर पकड़ लिया। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला कितनी खूबसूरत बात बता रहे, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है सुब्हान ताला, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। ये है अल्लाह का फजल। क्या है अल्लाह का फजल? अल्लाह ताला बोल रहे हैं मेरी मोहब्बत, नर्म दिली ईमान वालों के लिए, मेरे रास्ते में मेहनत करना, दुश्मनों का खौफ ना रखना, रिश्तेदारों की मलामत से न डरना, रिश्तेदारों से खौफ ना रखना। असल में ये अल्लाह का फजल है। और लोग किसको फजल कहते? कोई बात नहीं, आपके पास 4 व्हीलर नहीं है, आपके पास बंगलो नहीं है, आपके पास फ्लैट नहीं है, लोग तो उसको फजल कहते। बड़ी बड़ी प्लेट पे लिख के जो है वो दरवाजे पर लगाएंगे, घर के गेट के बाहर लगाएंगे, गाड़ियों में लगाएंगे। चलिए ठीक है, दुनिया के लिहाज से ये वो समझते अल्लाह का फजल है। अल्लाह सुब्हान ताला किसको फजल बोल रहे हैं? अगर इनमें से कुछ चीजें आपके अंदर हैं तो आप शुक्र अदा करें। मैं तो बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने ये चीजें अता की है, अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर ऐसी कोई चीज नहीं है मेरे पास, लेकिन ये चीज है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह का फजल, और बहुत ही फख्र से मैं कहती हूँ कि मेरे पास अल्लाह का बहुत फजल है। लोग बोले कि पागल हो गई, क्या है इसके पास तो कुछ नहीं है। हाँ भाई, तुम्हें क्या पता मेरे पास क्या है? ये अल्लाह ने जो चुना अपनी किताब के लिए, ये सबसे बड़ा अल्लाह सुब्हान ताला फजल अपना बताते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मैंने आपको किताब दी, ये सबसे बड़ा फजल मैंने आप पर किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का कलाम हमें भी मिल रहा है, इसको फजल समझिए, अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत समझिए, तभी किताब आपको कुछ फायदा देगी। इसको बोझ मत समझिए बिल्कुल भी। अल्लाह सुब्हान ताला वासिउ अलीम है, बहुत वसअत इल्म वाला है, उसको सब पता है कि उसको अपना फजल किसको देना है, किसको नहीं देना है। जो इसकी कदर करता है अल्लाह सुब्हान ताला उससे ही अपना फजल अता करते हैं। अब होता क्या है, और ये देखिए आपके साथ भी होगा, हमारे साथ तो हो चुका, हमें आदत पड़ गई अभी इन सब चीजों की। होता क्या पता है, जब इंसान किताब और सुन्नत पर चलना शुरू करता है और उसके बाद जो है वो मुखालिफत की हवाएं जो चलती हैं, रिश्तेदारों की और सगे रिश्तेदारों की, भाई बहन, माँ बाप, ससुराली रिश्ते, मायके के रिश्ते, पड़ोसी, दोस्त, सबकी तरफ से जो ये हवाएं चलती है ना मुखालिफत की, तो बंदा अकेला रह जाता है। फिर सोचता है क्या हुआ, मैंने क्या किया? अल्लाह सुब्हान तआला बोल रहे क्यों फिक्र करते हो? तुम्हें क्या ये बेकार की दोस्तियां चाहिए, बेकार की रिश्तेदारी चाहिए? इन्नमा वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु, अरे तुम्हारे दोस्त तो अल्लाह और उसके रसूल है और ईमान वाले हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क मेरी जिंदगी में भी आया था जब कुरान को समझकर, और एक गट्स अंदर आया था कि अब मैं लोगों को दलील के साथ जवाब दे सकती हूँ कि तुम क्या करते हो, क्या सही करते हो, क्या गलत करते हो। अपनों से सबसे पहले मुखालिफत होती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बहुत बड़ा सबूत है कि उनको अपने घर से, अपने कुंबे से, खानदान से, बिरादरी से निकाल दिया गया था, बाइकआउट कर दिया गया था। व्हाट्स द रीजन? सिर्फ और सिर्फ कुरान दूसरों तक पहुंचाने की वजह से और कुरान पर अमल करने की वजह से। अल्लाह ताला बोल रहे हैं गए तो छोड़ो ना, सबको जाने दो, क्या हो गया, सारे दोस्त छूट गए तुम्हारे तो। अरे अब तुमको ये काफी नहीं है कि अल्लाह तुम्हारा दोस्त है, उसका रसूल तुम्हारा दोस्त है, और ईमान वाली भी तो है ना दोस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त सब चले गए, मेरा सारा फ्रेंड सर्कल खत्म हुआ, लेकिन बाद में अल्लाह के अपने रास्ते में अल्लाह सुब्हान ताला ने जो दोस्त आप जैसे अता किए वो बहुत बेहतरीन साथी अता किए। अब तो जहन में कोई बोझ भी नहीं रहता है कि मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए, रिश्तेदार छोड़कर चले गए, कोई बोझ नहीं है दिमाग में, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो शुक्र निकलता है अल्लाह का, अल्लाह ये होते मेरे साथ तो न जाने मेरे लिए कितनी रुकावटें पैदा करते तेरे रास्ते में, अच्छा किया तूने मुझसे दूर कर दिया इन लोगों को, अब शुक्र निकलती है। यकीन जानिए कि वासिउल अलीम अल्लाह सुब्हान ताला की सिफत, यस डेफिनेटली हम नहीं उसके इल्म को समझ सकते हैं, हम उसकी हिकमत को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब हमें बात समझ आती है तो यकीन करिए शुक्र निकलता, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे साथ ये मामलात किए, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्ती तौर पर देखिए दुख होता है, तकलीफ होती है, सब कुछ होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा आपको बाद में जो अल्लाह के कलाम से और एक तसल्ली और एक एनर्जी मिलती है वो किसी और चीज से नहीं मिलती है।
دعا کریے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ ایسی صفت عطا کر تاکہ تو جو یہ مجھ سے کام لے رہا ہے میں یہ کام کرتی رہوں. دعا کر دیے فوراً. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حق میں اس دعا کو قبول کرے. آمین یا ربی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان والے وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ سب رکوع بھی کرتے ہیں. بتاؤ ذرا، تمہیں وہ دوست اچھے ہیں جو تمہیں بازاروں میں لے جاتے ہیں، فلم دکھانے لے جاتے ہیں، موویز پہ لے جاتے ہیں، پارٹیز میں لے جاتے ہیں، وہ دوست اچھے تھے تمہارے؟ یا یہ ایمان والے دوست اچھے ہیں جو نماز کے قائم کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے، رکوع بھی کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں تو بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ میرے جو پہلا فرینڈ سرکل تھا واقعی سب برائیوں میں پھنسا ہوا تھا. یہ باپ دادا کے کلچر پہ چلنے والا وہ ان کا دین تھا اور دور دور تک جس کی کوئی دلیل نہیں، کچھ نہیں. اللہ نے بچایا. بے شک لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں تھی کہ جو مجھے ان سب کی برائیوں سے بچا لیتا. ہاں لیکن آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. قرآن کی خوبصورت آیتوں میں یہ ایک بہت خوبصورت آیت ہے. اور جو بھی وہ دوست رکھتا ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر یہ ہے اللہ کا گروپ اور ڈیفینیٹلی یہی لوگ ہمیشہ جیتنے والے ہیں اور یہی لوگ ہمیشہ غالب آنے والے ہیں. الحمدللہ. فوراً دعا کریے اللہ تیرے گروپ میں شامل کر دے. اللہ میں تیری ہونا چاہتی ہوں. پہلی آیت میں کیا کہا؟ ارے تمہارا دوست ہے نا، اللہ تمہارا دوست ہے، اس کا رسول تمہارا دوست ہے، ایمان والے تمہارے دوست ہیں. اس میں صحابہ سے لے کر اب تک جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سارے لوگ اس کے اندر آ جائیں گے. دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ بتاؤ ذرا. اور جو بھی وہ دوست رکھتا ہے، اب یہاں پہ بندوں کے چوائس پہ چھوڑ دیا ہے کہ جو اللہ کو دوست رکھتا ہے، اس کے رسول کو دوست بناتا ہے اور اچھے اچھے ایمان والوں کو دوست بناتا ہے، یہ سب مل کر ایک گروپ بناتے ہیں جس کو اللہ کا گروپ کہا جاتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ دور قرآن میں اس آیت پر جب ہماری بات ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے اس آیت کو ایک نا ٹائٹل دیا تھا، حزب اللہ کر کے، اللہ کا گروپ. ایسا بہت خوبصورت باتیں ہیں. آپ چاہتے ہیں کسی کو اس چیز کی طرف رغبت دلانا کہ بھائی تمہیں اللہ کے گروپ میں شامل ہونا ہے، بالکل اس طریقے کی باتیں آپ اپنے بچوں کو سمجھا سکتی ہیں، گھر والوں کو سمجھا سکتی ہیں. اللہ کے گروپ میں آپ کو شامل ہونا ہے تو آپ ایک کام کریں، کرنے کے تھوڑے سے کام یہ کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، آپ بھی اللہ سے محبت کریں گے، ہے نا. یہ دیکھیے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت کتنی انرجی دے رہی ہے، مجھے تو بہت فیل ہوتی ہے. میں اس آیت پر اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی ایک تو موٹیویشن مجھے ملتا ہے، ادر تھنگ اس کے میں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ میں انرجی فیل کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ مجھے تو نے اپنے گروپ میں شامل کیا ہے. الحمدللہ. بہت خوبصورت باتیں، بہت خوبصورت باتیں. یہ تو اللہ کے حکم سے 56 ہماری آیت ہو گئی الحمدللہ. اور یہ باتیں دیکھیے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے
ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ان دعاؤں کے ساتھ میں سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔